Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Birbal's Intelligence. So let's begin the chapter to know more about it. Chapter 2, Birbal's Intelligence. About the chapter. The message given in the lesson is that we should look at all the circumstances before reaching any decision. Haste in taking a decision can put us in trouble in future. A decision taken with patience can save us from remorse. So the message which going to learn through this chapter is that कि हमें कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है तो हमें उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो बाद में हो सकता है हमारे लिए वो ट्रबल क्रिएट हो सकता है. वी शुड नेवर टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन in a very panic time or in very hurry. So let's see what was there in this chapter. Birbal had a cough. He stayed home for 3 days, drinking the ginger and honey tonic his wife made for him and soothing his throat with hot drinks. अब बीरबल को हो रही थी खांसी, तो वो 3 दिन तक घर में रहा, अदरक का पानी पिया, हनी का टॉनिक लिया उसने जो उसकी वाइफ ने उसके लिए बनाया था, और वो अपने गले को ठीक करने की कोशिश कर रहा था हॉट ड्रिंक से. On the 4th day, feeling better, he dressed and strolled towards the emperor's palace. अब 4th डे जब वो थोड़ा सा उसको बेटर फील हुआ तो वो घूमता घूमता एम्परर के पैलेस तक चला गया. It was time for the informal gathering that took place in the evenings when Akbar was not away from his capital. तो मोस्टली ये जो टाइम होता था इस टाइम पे इनकी गैदरिंग होया करती थी, इनफॉर्मल गैदरिंग जो इवनिंग्स में होती थी जब लोग इकट्ठे होते थे, जब अकबर कैपिटल में नहीं होते थे, अकबर कैपिटल से दूर नहीं होते थे अपनी. So Birbal smiled. It felt good to be well again, and he was looking forward to hearing all the news. Now, Birbal ने स्माइल किया because जब वो वापस से थोड़ा ठीक हो गया था, he was feeling better, वो खुश था, तो वो वापस से सारी न्यूज़ सुनने के लिए he was very much eager. He had just passed the spectacular Panch Mahal when heard footsteps running to catch up with him. तो वो तभी तभी उसने स्पेक्टेकुलर पंचमहल को पास किया जब उसने सुना कि कोई एकदम से आ रहा है, किसी के पैरों की आवाज उसको सुनाई दी कि कोई इसको पकड़ने आ रहा है. He turned and waited for this friend Raja Man Singh. Have you heard? The Rajput said breathlessly. Do you know the terrible news? तो एकदम से उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कोई भागता हुआ आ रहा है उसे पकड़ने के लिए, तो वो वापस मुड़ा और उसने देखा तो इट वॉज राजा. उसने कहा वेटेड फॉर दिस फ्रेंड राजा मान सिंह. क्या तुमने सुना? राजपूत सेड, राजपूत आया तो वो बिल्कुल भागता हुआ आया तो उसको सांस चढ़ गई, तो इसे तुमने सुना राजा मान सिंह? डू यू नो, तुम्हें टेरिबल न्यूज पता है क्या हुआ है? बीरबल looked at Raja Mansing's worried face and he shook his head. I have been ill and seen nobody, he said briefly. What was happened? उसने कहा, जब उसको देखा कि वो बड़ा परेशान है. He shook his head. उसने अपना सिर हिलाया एंड उसने बोला कि मैं तो बीमार था बहुत दिनों से, मैंने किसी को नहीं देखा. क्या हुआ है? It happened only this morning and I just heard that Tansen, he passed and unable to continue. तो उसने बोला कि ये आज सुबह की ही बात है, तो मैंने सुना तानसेन तानसेन ही पास्ड, वो मतलब पूरी बात नहीं कह पाया. बीरबल looked at him in alarm. This is frightening indeed. Is Tansen all right? तो एकदम बीरबल घबरा गया. क्या तानसेन ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? Oh, he is all right. That is to say he is well, but जहाँपना has had him imprisoned. उसने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारे जहाँपना है तो उसको उसने उन्हें जेल में डाल दिया है. Imprisoned? How can this be? वो कैसे हो सकता है? Raja Mansingh took a deep breath. Do you remember that younger sister, young singer बादल राम? उसने कहा तुम्हें याद है एक सिंगर था बादल राम? Of course, he sang only last month. He's getting better every day. In fact, I was telling my wife only the other day that he looks as if we have another Tansen in our midst. तो उसने कहा हाँ मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, उसने लास्ट मंथ ही तो गाया था और वो दिन पे दिन उसका सिंगिंग बेटर होती जा रही थी. इनफैक्ट मैं अपनी वाइफ से भी इस बारे में डिस्कस कर रहा था कि बिल्कुल तानसेन की तरह गाता है एंड हमें एक अनदर दूसरा तानसेन मिल गया हमारे बीच. नेवर से दैट, राजा मानसिंह एक्सक्लेम्ड. लिसन बिफोर यू से अनदर वर्ड. उसने कहा ऐसा कभी मत बोलना, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच लो. Yesterday at noon, Badal Ram was found dead near the main gateway.
उसने कहा कल दोपहर के समय जो बादल राम था, ही वॉज फाउंड डेड, उसी ने उसको मार दिया, मेन गेटवे पर पड़ा था वो। इट इज बिलीव दैट समवन किल्ड हिम एंड मेनी आर विस्परिंग दैट तानसेन हैड पॉइजनड हिम आउट ऑफ जेलसी। तो जहां तक है ये था कि उसको किसी ने मार दिया है, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तानसेन ने ही जेलसी में आके उसको मार दिया, उसको जहर दे दिया। तानसेन वुड बी अनेबल टू इवन पॉइजन द रैट्स इन हिज हाउस। उसने कहा तानसेन तो है, अपने घर में चूहे भी होते हैं ना, उनको भी जहर नहीं दे सकता। बीरबल सेड फोर्सफुली, द वेरी आइडिया इज रिडिकुलस। उसने कहा ये बिल्कुल बेकार का आइडिया है, ये जो भी ये लोग सोच रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तानसेन, जो इंसान अपने घर के चूहों को नहीं मार सकता, वो किसी और को जहर कैसे देगा। दे हैड रीच्ड द पैलेस बाय दिस टाइम। उसी बीच में वो बात करते करते महल पहुंच गए। द गैदरिंग ऑफ courtiers वर वेरी subdued and even Akbar looked distracted and worried। अब वहां पे सब लोग इकट्ठे हो गए थे, कोर्ट के भी सारे लोग थे। अकबर भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट था, बहुत ज्यादा परेशान था। ही मैनेज टू स्माइल व्हेन ही सॉ बीरबल। अब अकबर भी किसी तरीके से बीरबल को देख के उसने स्माइल की। बाइंग एंड आस्किंग परमिशन टू स्पीक, बीरबल सेड जहांपना, श्योरली यू कैन नॉट बिलीव दैट तानसेन वुड इवन डू सच अ थिंग। उसने, अकबर ने बीरबल से बोला कि जहांपना, ये तो पॉसिबल नहीं है, आप कैसे मान सकते हो कि तानसेन ने ये सब कुछ किया है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Who else would have a reason to wish that young man kill? Oh, half my pleasure in life has been destroyed by this one act of jealousy। उसने कहा तो और किसी के पास तो कोई रीजन ही नहीं है उसको मारने का, और कौन मार सकता है उसको। And the other half of your pleasure will be destroyed by your own act। जापना, with Tansen in prison you will be utterly deprived of music। How can this be? उसने बोला कि हाफ मेरा प्लेजर तो इसलिए ही चला गया कि ये जेलसी के वजह से उसने ये सब काम करा, और दूसरा, तानसेन को जेल में बंद करने के बाद आपका जो म्यूजिक का डेप्रीवेशन होगा वो क्या, आप कभी म्यूजिक नहीं सुन पाओगे, उससे भी आप भी तो डिप्राइव्ड हो रहे हो ना। तो ये इट इज नॉट अ गुड थिंग। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है, ये तो सारा प्लेजर डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। जस्टिस मस्ट बी डन, एम्परर अकबर थंडर्ड। अब एम्परर अकबर जो था थोड़ा चिल्लाया, अब जस्टिस होना चाहिए। एंड इफ तानसेन इज गिल्टी, आई विल नॉट प्लेस हिम अबव द लॉ इवन इफ हिज साइंस लाइक एन एंजल। बट इज तानसेन गिल्टी, बीरबल आस्क्ड। उसने कहा अब जस्टिस होके रहेगा, न्याय होके रहेगा। उसने कहा अगर तानसेन को अपनी गलती का पछतावा है तो मैं उसको बिल्कुल भी लॉज के अकॉर्डिंग उसको गाने नहीं दूंगा, अगर उसकी आवाज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अब बीरबल ने पूछा क्या तानसेन सच में गिल्टी है? Akbar looked at him in anger. Am I a fool to sentence an innocent man to prison, a man so close to my heart? Of course, he is guilty। तो अकबर ने कहा क्या मैं एक पागल दिखाई दे रहा हूँ? Am I fool? कि मैं बिना बात के एक बेकसूर इंसान को जेल में तो नहीं डालूंगा, उसको अपनी गलती का पछतावा है, इसी वजह से मैंने उसको जेल में डाला है। Didn't Hukam Beg see him buying something from the herb seller in Agra, and wasn't Badal poisoned? Then Hakim recognized symptoms when he was called to treat the young man। तो अकबर ने बोला हाँ वो गिल्टी है, अपने उसे पछतावा है। क्या हुकम बैग ने उसको देखा नहीं था कि वो हर्ब सेलर से आगरा में जहर खरीद रहा था, पॉइजन खरीद रहा था, तो क्या उसने वो पॉइजन नहीं दिया होगा बादल को? देन हकीम ने रिकॉग्नाइज भी करे हैं सिम्टम्स, जब उसको ट्रीट करने के लिए बुलाया गया बादल राम को, तो तब हकीम आया, उसने सिम्टम्स चेक किए। हुजूर, why was Hukam Beg at the herb shop? How did he see what Tansen was buying and what had Tansen to say? उसने कहा हुजूर, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ कि हुकम बेग वहां पर क्या कर रहे थे? अगर वो गया था तानसेन वहां पर, तो वो उस हर्ब शॉप पर क्या कर रहे थे, उसे कैसे पता? एंड हाउ डिड ही, और उन्होंने कैसे देख लिया कि उस तानसेन ने क्या खरीदा, क्यों खरीदा? देयर वॉज अटर साइलेंस इन द कोर्ट। अब कोर्ट में एकदम शांति हो गई। अकबर लुक्ड एट बीरबल फॉर अ लॉन्ग वाइल। अकबर बहुत देर तक बीरबल को देखता रहा। It seems that I have been hasty, Birbal. Let Hukam Beg and Tansen be sent for। उसने कहा मुझे लग रहा है मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी है, तो एक काम करते हैं, हुकम बेग और तानसेन को बुलवा लेते हैं। Let the herb seller be called to and बादल राम्स फैमिली टू, और हर्ब सेलर को भी बुला लेते हैं और बादल राम की फैमिली को भी। A formal court of justice was held the following day। फिर दोबारा से अगले दिन पूरा कोर्ट में सबको बुलाया गया। बीरबल was given the task of questioning the people involved
while the emperor sat in judgment. फिर बीरबल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि क्वेश्चनिंग तुम करोगे सबसे, अब मैं सिर्फ जजमेंट करूंगा. No, said the herb seller. He did not remember what Tansin had bought that day. अब हर्ब सेलर ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं तानसेन ने उस दिन क्या खरीदा था. He did not think it was a poisonous plant. However, उसने कहा मुझे नहीं लगता उसने कोई poisonous plant खरीदा था. Tansin usually bought herbs that soothe the throat or strengthen the chest. उसने कहा तानसेन यूजुअली वही वाली औषधियां, वही वाले हर्ब्स खरीदता है, वो वाले पौधे खरीदता है जो गले को जिससे आराम मिले, ताकि उसको आवाज अच्छी हो सके, उसका गला खराब ना हो. Hukam Beg said that he had been in the shop to buy ingredients for a special tonic he made for his horses. अब हुकम बेग ने कहा कि मैं तो वहां पर कुछ ऐसे हर्ब लेने गए थे ताकि मैं टॉनिक अपने हॉर्स को दे सकूं. हर्ब सेलर agreed that he often did so. और हर्ब सेलर ने एग्री करा कि हाँ वो भी इसीलिए आई थी. बीरबल let them both go and then he turned to the emperor. अब बीरबल ने उन दोनों को भेज दिया और उसके बाद वो अकबर से बात करने लगा. Who would have wanted to kill that young man? Did he have enemies? Does anyone know? उसने अब पूछा कि उस यंग मैन को मारना कौन चाहेगा, क्या उसके कोई दुश्मन थे, कोई उन्हें जानता है. There was a general shaking of heads. Nobody knew much about the young man. It appeared. अब सबने सिर हिलाया, किसी को नहीं पता था क्योंकि उसको इतना कोई जानता नहीं था. Then one man whispered to another. He belonged to a clan who is the sworn enemy of Bhams of Bhimsar. तो उनमें से ही एक आदमी ने बोला दूसरे आदमी से कि वो एक ऐसे ग्रुप से रिलेटेड था जो एनिमी था, दुश्मन था, बहुत ही ज्यादा वाला दुश्मन था भाम्स ऑफ बिम्सार. एम्परर अकबर ऑर्डर्ड तानसेन टू बी रिलीज्ड अंटिल द मैटर वाज क्लियर्ड. अब अकबर ने बीरबल को कहा कि तानसेन को रिलीज कर दिया जाए जब तक मैटर सॉल्व नहीं होता. He was forbidden to leave town, but within the walls of Fatehpur Sikri, he was free to wander wherever he wished. उसने कहा वो कहीं भी जा सकता है लेकिन इस विलेज से लीव नहीं कर सकता, इस टाउन को छोड़ के वो नहीं जाएगा, और बाकी वो कहीं भी घूमे, कहीं भी जहाँ उसका मन करे वो इजीली जा सकता है. In the evening he was called to sing as usual. फिर इवनिंग में उसको बुलाया गया वैसे ही. He could not refuse his emperor, but all who heard him agreed that his music was as sad as his face. अब वो अपने एम्परर ने उसको बुलाया तो वो रिफ्यूज तो नहीं कर सकता, बट सब लोग जो सुन रहे थे उनको उसका म्यूजिक बहुत ही सैड लगा. देयर विल बी नो हैप्पी म्यूजिक अंटिल हिज नेम इज कंप्लीटली क्लियर, बीरबल सेड टू राजा मानसिंह, एंड द टू फ्रेंड्स सेट अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग द केस. तो बीरबल ने बोला कि हैप्पी म्यूजिक तो तब तक नहीं होगा जब तक उसको क्लियरली बेकसूर साबित नहीं, वो इनोसेंट साबित नहीं हो जाता. तो बीरबल ने ये बात किसको बोली, राजा मानसिंह और जो भी दो फ्रेंड्स बैठे थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. बीरबल began to question people in and around the town. One dark night, he dressed up as a horse trader and stood around the bazaar for a long time listening people talking. तो एक दिन वो लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी आसपास के लोगों से. तो एक दिन रात के टाइम वो एक हॉर्स ट्रेडर बनकर गया और बाजार में खड़ा रहा बहुत देर तक और लोगों की बातें सुनता रहा. Gradually the story emerged. बादल राम was not the actual name of young man. और धीरे धीरे उसको पता लगा कि बादल राम उसका एक्चुअल नेम था ही नहीं. Once in a fit of anger he had killed a Bham clansman and had been obliged to flee for his life. तो एक दिन उसने गुस्से में आकर भाम क्लान का एक आदमी को मार दिया था, तो उसके लिए वो वहां से अपने आप को बचाने के लिए भाग गया. Having trained as a singer, he disguised himself, took a न्यू नेम एंड बिगिन टू सिंग एट द कोर्ट ऑफ नेबरिंग राजा. तो अपने आप को भेज बदल के ताकि कोई उसे पहचाने ना, अपनी पहचान बदल ली थी उसने और अपने आप को एक छुपा दिया था कि एक शो कर दिया था कि मैं तो एक सिंगर हूं और मेरा नाम है बादल राम, जबकि वो उसका असली नाम नहीं था. His fame spread and fearing that he would be exposed, he traveled to Mughal court of Agra, thinking that long distance from his own home would foil his pursuers. अब उसका फेम फैल गया था, दूर दूर तक लोग उसको सुनने लगे थे, तो वो अपने आप को थोड़ा बचाने के लिए ताकि वो ज्यादा एक्सपोज ना हो, वो ट्रैवल उसने किया मुगल कोर्ट ऑफ आगरा. वो आगरा में चला गया मुगल कोर्ट पे, ये सोचने के लिए जितना वो अपने घर से दूर रहेगा उतने लोगों की नजरों से दूर रहेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी. इट हैड फॉर अ शॉर्ट वाइल बट दे फाउंड हिम इन द. ऐसा हुआ, शायद उसे लगा था कि मैं बच जाऊंगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो हुआ, लेकिन लास्ट में नहीं. Birbal sent messengers to Bham and Badal Ram's home to investigate further.
Soon all the facts were in his hands. He carried his story to Akbar. तो उसके बाद बीरबल ने अपने कुछ आदमियों को, कुछ मैसेंजर्स को बादल राम के घर भेजा कि आखिर में वो कौन है, क्या है, उसके बारे में पता लगाया जाए। फिर उसने पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया, तो उसको उसके सारे फैक्ट्स पता लगे। फिर उसने उस बात को अकबर के पास लेके गया। A sad tale, Akbar said, shaking his head. I'm glad that you stopped from destroying all my happiness and losing both my singers out of haste and lack of thought. Then he turned to Tansin. So what he said कि ये तो बहुत ही दुख भरी बात है, अकबर ने बोला अपना सिर हिलाते हुए, कि मैं लेकिन खुश हूं कि तुमने मेरी हैप्पीनेस को दूर होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। मेरे पास मेरा जो सिंगर्स हैं दोनों, वो मेरे पास ही है। अब मुझे उन्हें जेल में नहीं जाना देना पड़ेगा और ना ही यहाँ से जाने देना पड़ेगा। फिर उसने तानसेन की तरफ मुड़ा और बोला, एम्प्रेस डू नॉट यूजुअली आस्क फॉरगिवनेस ऑफ देयर सब्जेक्ट्स तानसेन, ही सेड क्वाइटली, बट आई आस्क योर पार्डन नाउ। उसने कहा कि राजा से तो जल्दी इजीली माफी देते नहीं है, बट आई हैव आस्क्ड फॉर यू, ही सेड क्वाइटली, एंड तानसेन रिस्पॉन्डेड विद द सॉन्ग ऑफ जॉय एंड ग्रैटिट्यूड। और उसके बाद उसने उसको ग्रैटिट्यूड और जॉय के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत ही थैंकफुल करा उसने अकबर को भी और बीरबल को भी, और उसने फिर से अपना सॉन्ग गाया। नाउ लेट्स डू द वोकैबुलरी। टेरिबल, वेरी अनप्लेजेंट, ridiculous, very unreasonable, whispered, to speak very quietly into somebody's ear, disguised to change appearance, imprisoned to keep in prison, guilty, having broken a law, pardon used to mean sorry. Now let us do the tick the correct option and mark it on OMR sheet. Who was Tansin? Tansin was a singer. How many Navratan were there in the Akbar court? Akbar की कोर्ट में कितने नवरत्न थे? 9. Who saw Tansin buying something from the herb seller in Agra? किसने देखा था? हुकम बेग. Who was enemy of the young singer Badal Ram? Badal Ram का enemy कौन था? Bhamsa Bhimsar. Who received the horrifying title of Mian in the court of Akbar? तो किसको वो टाइटल दिया गया था अकबर के कोर्ट में? That was a Birbal. Now let's do the fill in the blanks. Birbal looked at Raja Man Singh's worried face. Badal Ram was found dead near the main gateway. Dash was given the task of questioning the people involved. किसको task दिया था questioning करने का? Birbal. Dash do not usually ask forgiveness of their subjects. That is emperor. The herb seller agreed that he often did so. Now let's do the true and false. मुगल एम्परर अकबर imprisoned बीरबल. जो मुगल एम्परर अकबर था उसने बीरबल को जेल में डाला था. फॉल्स. राजा मान सिंह killed the young singer Badal Ram. False. Birbal was ill. True. Hukam Beg was the herb seller in Agra. Hukam Beg was not the herb seller. That is false. Badal Ram was one of the 9 gems of Akbar's court. False. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care.